2-2. Tell us about the transformation. Not just last year, but playing front runners this year. I mean, obviously, a lot of credit goes to the support staff, right? Mo Mobat, Andy Flower, Dinesh Karthik, Malolan, Omi. I mean, the way they prepared before the auction also last year, and the way they set the team, right? The balance of it. So again, I mean, sometimes half of the battle you won in the auction. I guess they did pretty good job, and then eventually it was on us to deliver. And yeah, I mean, glad that we were able to, have the hold on the trophy back to back. Well done. I'm sure the party will be long and joyous. Yeah, definitely. Again, this 18 years of waiting and having 2 back-to-back trophies. This is for the RCB fans. Wherever we have gone, they have supported us, and obviously for Virat as well, pretty special, right? After 18 and 19 season, having 2 back-to-back trophies. So yeah, it's amazing. Well done. Thank you very much, Krunal Pandya, and celebrate. Fantastic once again in the final. Thank you so much. Right, let's go to Aaron Finch. He's got the big man with him. Virat Kohli, congratulations, back-to-back titles. You just said here, how was it different this year compared to last year? Well, I said to a few of the boys that it doesn't feel like the same pressure as last year. We knew what kind of ability we have in the group. We topped the table. There's a reason why we got here first. And we just said one thing: if we stick to our cricket, if we execute our plans, we are the best team in the comp, and there's a reason why we've done well so far in the group stage. We ended up topping the league stage, and yeah, just the skill sets we have, the maturity, the composure of the guys just shown through again tonight, and it was a clinical performance. Right throughout the tournament, was there absolutely any doubt that you wouldn't be in this position come this time of the season? Well, to be fair, after the break we had a couple of losses. I mean, one loss, and then we had a close win against MI. I'd say that week for us was a bit tricky because we wanted to finish top, but as soon as we got that win against MI, the belief kicked back in. Then we had a comprehensive win against KKR, and then yeah, just ended up topping the table and just on our way to the finals. Give us a couple of words about this group, what it means to you, what it means to your family, to everyone involved. Oh, it's amazing. I mean, we've had to wait for so long, and then just to have a group of guys where you feel like you're stepping onto the ground. You don't need to be the one to step up every time. There's guys behind you, around you, who can win games of cricket for you. We have so many man of the match awards spread throughout the group as well. I mean, you look at world-class bowling like Hoff, Bhuv, Duff. I mean, Krunal Pandya, you can bank on him as good as ever. Rasikdar Dar was brilliant this season. All the batsmen chipped in as well. So I feel so happy to play in a group where we have balance, we have strength, and we are an all-round strong team. And yeah, just that's why we have the confidence we have on the field right now. Congratulations, mate. Now back-to-back champion. Harsha, who have you got? Thank you, Vinci. Jitesh Rao, कसं वाटतंय? खूप आनंद वाटतंय. दुसऱ्यांदा जिंकलो आहे आणि मराठी बोलतोय इथे IPL मध्ये, ते मला खूप छान वाटतं. इस साल फर्क क्या पड़ा कि पिछले साल तो आप जीते थे, बहुत उत्साह था कि पहली बार जीते. इस साल क्या माहौल था? जैसे मो ने पहले ही कहा था कि वी आर नॉट डिफेंडिंग, वी आर अटैकिंग दिस ट्रॉफी, वी आर मीन्स चेजिंग समथिंग. उसके वजह से ना हमारा माइंडसेट चेंज हुआ कि वी आर ट्राइंग टू डोमिनेट मोर, वी आर नॉट डिफेंसिव और वी आर थिंकिंग टू डिफेंड अवर ट्रॉफी लाइक दैट. एक चीज़ मैंने देखी कि अगर कोई प्लेयर इंजर हो गया तो उसका रिप्लेसमेंट तैयार था. अगर किसी का फॉर्म 4-5 मैच के लिए नहीं है तो भी उनको रखा गया. तो ये माहौल बहुत ही खूबसूरत रहा होगा. आई थिंक सब कुछ क्रेडिट जाता है मैनेजमेंट को कि जिस तरीके से उन्होंने हमको नरिश किया है, सराउंडिंग दी है. जैसे मैं अभी अपकमिंग हूँ, अपकमिंग तो नहीं हूँ, मैं 32 साल का हूँ, पर DK अन्ना ने मुझे जैसे संभाला है, मो ने जब मैं परफॉर्म नहीं कर रहा था, आई थिंक वो एक आपको आइडेंटिटी देता है कि ये टीम में कि अच्छे लोगों की कदर है. नॉट यू आर अ बिग प्लेयर और समथिंग लाइक, इफ यू आर गुड ह्यूमन यू कैन गिव समथिंग टू द टीम, दे विल मींस गिव यू वैल्यू. मुझे सबसे अच्छा लगा कि इस बार RCB टॉप सीट्स थे. जी, पिछले साल एक एक्साइटमेंट था, एक डिस्कवरी थी. इस साल टॉप सीट्स थे आप. राइट, बोल सकते हैं. वी ऑल्सो नो दैट वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग टीम. हमें भी पता था हम बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बट कह सकते हैं कि हम ज़्यादा फोकस कर रहे थे एक गेम एट ए टाइम, उसकी टैक्टिक्स, उसका एग्जीक्यूशन कैसे करें. बस एक मैच जैसे फोकस करते रहे कि हमने ये कभी नहीं सोचा कि हम कितना अच्छा खेल रहे हैं, कोई और टीम के. हमने सब फोकस हम पे रखा और हमारे टैक्टिक्स पे रखा. बहुत खूब एंजॉय करें. जी, 2 टाइटल हो गए, बहुत बड़ी बात है. हाँ, पक्का अगले साल तीसरा भी आ सकता है सर. एंजॉय करा. थैंक यू. हाँ, नक्की सर. थैंक यू. Right, let's go to Finchy. I'm back with a couple of absolute champions. You're both 3-time winners now. You're still yet to lose a T20 final. How's that compare? That's right up there. I think obviously a little bit more relaxed within the group this year. Sort of got the monkey off the back last year in terms of a long wait for that first win, but I think the group just felt
calm and composed throughout the whole tournament, really. Someone stepped up when they needed to be. I think we had, again, like 10 men in the matches. So amazing depth in the squad. Anyone who came in did a great job, and the bowl with Booby is pretty special. Yeah, give us a couple of words about the great man. I can't remember a game where he went for over 35 runs. In this day and age, it's unbelievable. Got wickets up front nearly every game he played. It just took the heat off, I think, the rest of us. We could relax, and you know, we're bowling at numbers 4 and 5 in the power play. So it's pretty nice. And Booby, you finished second in the purple cap. I'm sure you would take a title any day over that. Yes, of course. I mean, trophy is the most important thing for us. I would trade any day with that. But yes, I mean, individually, season went well for me. There was planning. There were a lot of things before the season, and it went well. Talk us through what it's like to turn up to a game with just confidence that you know that if you perform near your best, generally that's good enough to beat any opposition in the world. Yeah, I think if you take wickets, there's always confidence is up. वो एटीट्यूड हम बिल्डअप किया है कि आई डोंट वांट टू गिव अप, आई वांट टू बी देयर, सो अभी तक वो हेल्प किया है। एक वक्त तक आरसीबी के जो फास्ट बॉलर्स हैं उससे ज़्यादा बाउंसर डालने वाले गेंदबाज कुणाल पंड्या है। बैक कैसी है? बैक बढ़िया है। एक्चुअली बैक में कोई दिक्कत हुआ नहीं जितने भी बाउंसर डाले, बट हाँ वही मतलब जिस तरीके से गेम इवॉल्व हो रहा था तो मैं सोचा कुछ अलग नया करूँ, तो बाउंसर और वो स्लिंगर ट्राई किया। होपफुली अभी नेक्स्ट ईयर थोड़ा और स्पीड बढ़ाना है ट्रेनिंग करके कि आई कैन टच 125 130 कंसिस्टेंटली। मेरे जितनी स्पीड नहीं। विशिंग यू ऑल द लक। थैंक यू मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। कीप अप द ग्रेट वर्क। थैंक यू। ये खुशियां क्यों नहीं होंगी, आपने टाइटल जीता है, लेकिन अब इन खुशियों की, इस एहसास की आदत हो गई आरसीबी को, और वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 17 साल का जो इंतजार था, पिछले सीजन के इमोशंस शायद बहुत मुश्किल मैच करने, बट इट्स नाउ अबाउट डोमिनेशन। आइए चलते हैं इरफान के पास, वापस साथ में स्विंग के जादूगर। स्विंग पहले भी किंग था, स्विंग आज भी किंग है। कितने भी जनरेशन चेंज हो जाए, कितने भी तेज खेलने वाले बल्लेबाज आ जाए, अगर गेंद हिलती है तो बल्लेबाज हिलता है, और इसी वजह से मेरे साथ है आज स्विंग के किंग भुवनेश्वर कुमार। भुवी, बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह से आपका ये साल रहा है, जिस तरह से आपका फिटनेस रहा है, कोई एक चीज़ अगर पीछे मुड़ के देखेंगे जो आपके लिए इस सीजन सबसे ज़्यादा क्या काम आई है? ये कहना टफ है, क्योंकि सीज़न से पहले क्या प्रिपरेशन रहती है वो बहुत मैटर करता है मेरे लिए। और सिर्फ बॉलिंग की बात नहीं है, क्योंकि बॉलिंग मैं सालों से करता रहा हूँ, बट फिटनेस एक ऐसी चीज़ है कि जिसने मेरा पूरी सीज़न साथ दिया है, क्योंकि आसान नहीं होता 14 लीग गेम खेलना, फिर 2 या 3 प्लेऑफ्स खेलना। बट आई थिंक एक चीज़ जो मैं बोलूँगा कि जो गेम चेंजिंग रही है, आई थिंक फिटनेस जो मैंने ऑफ सीज़न में की है। और एब्सोल्युटली वो जो फिटनेस है वो साफ साफ नजर आ रही है मैदान में। लेकिन हमने देखा है कि आप आउट स्विंग कर सकते हैं, इन स्विंग कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले आपसे बात भी की थी ऑन एयर, कि वो जो स्क्रैम्बल सीम का इस्तेमाल आज आपने इस सीज़न लगातार किया है, क्या वो सीज़न से पहले की तैयारी थी, या फिर जैसे सीज़न चली है, पिचेस देखी है, वैसे बदलाव किया है? आई थिंक स्क्रैम्बल सीम मैं काफ़ी पहले से डालता आ रहा हूँ, बट इस सीज़न ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि विकेट क्या डिमांड कर रहे थे। इवन 1-2 बॉल डालने के बाद आइडिया लगता है कि क्या काम करने वाला है। तो हाँ, इस सीज़न ज़्यादा यूज़ किया है दिमाग में रखते हुए कि विकेट क्या हेल्प कर रहा है। और देखिए, ये जो आपकी टीम है, आपको एक लीडर मानती है इस टीम का, क्योंकि आपका सिर्फ जिम्मेदारी जो है वो विकेट निकालना नहीं है, लेकिन बाकी गेंदबाजों को भी चलाना है। जैसे यंग खिलाड़ी आया, पिछले साल यश दयाल था, उसको चलाना, इस साल राशिक सलाम आया, उसको चलाना, उसमें आपका रोल, और साथ ही में कितना एंजॉय करते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? अपने आप इंजॉय होने लगती है अगर आप खुद पर्सनली अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप पर्सनली अच्छा करते हैं कॉन्फिडेंस ऊपर रहता है। और जैसे राशिक की बात करें, यश की बात करें, आई थिंक एज अ सीनियर प्लेयर कोशिश करते हैं, बट क्रेडिट उन्हें भी जाएगा, वो कितना सीखना चाहते हैं, जितना उनके अंदर लगन है। तो आई थिंक जितना मैंने काम किया उससे ज़्यादा क्रेडिट उनका जाता है कि उन्होंने जितना सीखा, सिर्फ मेरे साथ नहीं, हेजलवुड के साथ या और बॉलिंग कोच के साथ। तो आई थिंक जो हमारा एक थर्ड बॉलर मिसिंग था, यश दयाल, जिन्होंने लास्ट ईयर अच्छा किया, और राशिक ने जिस हिसाब से उस जिम्मेदारी को पूरा किया, आई थिंक उन्हें बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। देखिए, ट्रॉफी सबसे ऊपर रहेगी, लेकिन एक चूज करना है आपको, ओवर कवर छक्का जो आपने लगाया था, या इन स्विंग बोल्ड शुभमन गिल को, क्या चूज करोगे? आई थिंक ओवर कवर छक्का। रीज़न है, मैं नहीं बोलूँगा मेरी वजह से जीते हैं, बट उस गेम को जीतने के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। और अगर लास्ट ईयर से सिमिलरिटी देखें, एक मैच था अगेंस्ट एलएसी में
जितेश ने बहुत अच्छा किया था। वो जीतने के बाद एकदम काफ़ी चीज़ें चेंज हुई थी और इसमें इस सीज़न में जो MI से मैच जीते हैं वो जीतने के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो आई थिंक वो ओवर्स को अच्छा था। आप ऐसे ही खेलते रहो, आप चेंज मत हो। वेल डन, थैंक यू वेल डन, वेल डन। रवि शास्त्री के साथ इस समय खड़े हैं विराट कोहली। आकाश, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जो फैंस भी हैं वो भी शायद जो एहसास इस समय कर रहे होंगे, जो महसूस कर रहे होंगे, हो सकता है वो पिछले सीजन से अलग हो। पिछले सीजन इमोशन जो थे वो अलग तरीके के थे, वो एक राहत थी, वो थोड़ा सुकून था। लेकिन अब ये डोमिनेशन की दास्तान है। हम IPL के डबल चैंपियंस को देख रहे हैं जिन्होंने डिफेंड किया है, लेकिन अभी WPL की ट्रॉफी भी इनके पास है। तो एज अ फ्रैंचाइज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने दौर की शुरुआत कर दी है। एब्सोल्युटली, क्योंकि पहली जब जीत है तो आपको सिर्फ एहसास दिलाती है कि आप क्या कर सकते हैं। आपको 17 साल तक आप लगातार एक चीज़ करने का प्रयास करते हैं, फिर 18वें साल अगर आपको वो मिलती है तो आपको लगता है कि एक सपना पूरा हुआ है। पर IPL उस प्रकार का टूर्नामेंट है कि वो शुरुआत को आपको दौर में अगर बदलना है तो फिर आपको लगातार ट्रॉफीज जीतनी होंगी। एंड जो भी सीनियर्स हैं हमेशा यही बताया करते थे कि भैया ट्रॉफी एक बार जीतना मुश्किल है पर उस ट्रॉफी को डिफेंड करना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। और वो 19 साल के इतिहास में भी पता चला है कि सिर्फ 3 ही तो टीम्स हैं जो ये काम कर पाई हैं। और वो जो तीसरी टीम अब ये बने हैं, इससे पहले की जो 2 टीम्स हैं वो 5-5 बार ट्रॉफी उठा चुकी हैं। तब जाके आप कई बार वो डबल करते हैं। इन्होंने तो रिपीट कर दिया है एंड दे आर इन अ वेरी गुड स्पेस एंड फ्रॉम द फैंस POV एज वेल। आई मीन जब पहली बार होता है तो उसके लिए कुछ मतलब वो रोमांस अलग होता है, क्योंकि उसके लिए वो आपकी फैंटेसीज का हिस्सा होता है। पर नाउ देयर इज एक्सपेक्टेशन एंड देयर इज एंटिसिपेशन, और उसके बाद इस तरीके का डोमिनेशन आई थिंक टेक अबाउट यार। चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010 में जीत के बाद 11 में किया था, पहली टीम बने थे। उसके बाद मुंबई इंडियंस जो काफ़ी टाइटल जीत चुके थे, उसके बाद उन्होंने डोमिनेट किया। लेकिन अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, चाहे वुमेन्स प्रीमियर लीग हो चाहे टाटा इंडियन प्रीमियर लीग हो, ये दोनों के होल्डर्स हैं। रजत पाटीदार और स्मृति मंदना इस फ्रेंचाइज की हॉल ऑफ फेम में पहुंच चुके हैं। सनी सर भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ सीधा अहमदाबाद से। सनी सर, द वाइब मस्ट बी इलेक्ट्रिक। और जिस तरीके से आज सिर्फ डोमिनेट शायद उतना नहीं किया जितना पूरे सीजन करते आए हैं, व्हाट्स बीन द स्टैंड आउट स्टोरी फॉर यू? देखिए, स्टैंड आउट स्टोरी की बात करें तो इट हैज़ टू बी द वे RCB हैव प्लेड लाइक चैंपियंस थ्रू आउट। मतलब सारी टूर्नामेंट में उन्होंने चैंपियन जैसा ही तो खेल दिखाया। हाँ, बीच में एक हाथ दूसरी मैच वो हार गए, पर अगर आप उनकी देखें, आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखें, उनके पास बैटिंग में डेप्थ थी, बैटिंग में गहराई